Hello dear students of class 10. So today in this video I will teach you chapter number 13 of science subject. The name of this chapter is magnetic effects of electric current. Okay, so before starting this chapter I want to give you some brief introduction of this chapter, that what we will study in this chapter. So as from name you can guess that electric current is producing some effect. Okay, when we pass electric current, okay, heat is produced, light is also produced, but there is something else which is also produced and that is magnetism. ओके जब भी हम लोग कोई इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, सो ड्यू टू दैट इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक इफेक्ट विल ऑल्सो प्रोड्यूस. सो वी विल स्टडी दिस मैग्नेटिक इफेक्ट्स व्हेन वी पास इलेक्ट्रिक करंट इन दिस चैप्टर. Okay, so there are basically two things. One is magnetic effect of electric current and second is electromagnetic induction, which is like completely opposite to this, that when we do some magnetism electricity is producing. So these two things we will study in this chapter. Okay, so let's start this chapter. In the previous chapter on electricity we learn about the heating effect of electric current. Okay, yes, what could be the other effect of electric current? We know that an electric current carrying wire behave like a magnet. Let us perform the following activity to reinforce it. It means electric current we are using in iron, in microwave oven to produce heat. Okay, but apart from heat, electric current is also producing magnetism, magnetic effect, and it will act that wire from which that current is passing, it is acting as a magnet. So to prove this we will do one activity. Okay, so activity 13.1. Take a straight thick copper wire and place between the points X and Y in the electric circuit as shown in figure 13.1. The wire XY is kept perpendicular to the plane of paper. Horizontally place a small compass near this copper wire. See the position of its needle. Pass the current throughout the circuit by inserting the key into the plug. Observe the change in the position of the compass needle. ठीक है, चलो तो इसमें हमें क्या करने को बोला गया है? तो बेसिकली यस यहाँ पे एक एक्स वाई एक वायर लिया है हम लोगों ने. ठीक है, उसके साथ हम लोगों ने रेजिस्टर, बैटरी, स्विच ये सब ज्वाइन कर लिया है. ठीक है, अभी एमीटर यस एंड देन दिस इज बैटरी. सो इसमें से जब भी हम लोग करंट करेंगे, देखिए ये करंट की डायरेक्शन है. ठीक है, और यहाँ पे एक एक ABCD ऐसा एक पेपर लिया है जिस पे हम लोगों ने कंपास रखा है. ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम 3 बार रीडिंग करेंगे इसका. ठीक है, फर्स्ट जब हम लोग करंट को पास नहीं करेंगे, मतलब स्विच हमारी ओपन है वो क्लोज नहीं है, मतलब सर्किट हमारी ओपन है, तो तब उसमें से करंट पास नहीं होगा. तब हम लोग जब मैग्नेटिक नीडल को देखेंगे इस कंपास में, ठीक है, कंपास की जो मैग्नेटिक नीडल होती है वो ऐसे नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन शो करती है. ठीक है, तो जब हम लोग वो देखेंगे तब वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टेडी रहेगी. फिर हम इलेक्ट्रिक करंट को एक डायरेक्शन में पास करेंगे, तो तब हम लोग अगर मैग्नेटिक नीडल ऑब्जर्व करेंगे, सो वी विल फाइंड दैट मैग्नेटिक नीडल विल डिफ्लेक्ट. ओके, मतलब कि वो नॉर्थ साउथ से थोड़ी ऐसे लेफ्ट साइड भी जा सकती है और राइट साइड भी जा सकती है, दोनों में से कोई भी साइड जा सकती है. और थर्ड केस में हम करंट को ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, तो आप लोग देखेंगे कि मैग्नेटिक नीडल दूसरी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रही है. तो ये एक्सपेरिमेंट हमें शो करता है कि जब भी हम लोग कोई भी वायर में से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, एट दैट टाइम देयर विल बी सम मैग्नेटिक इफेक्ट इज प्रोड्यूसिंग, and due to that magnetic effect it is magnetism which is generated by passing this electric current. okay, so ये एक्सपेरिमेंट हमें वो प्रूव कर रहा था. हम लोगों ने देखा कि जैसे ही हम लोग वायर में से करंट पास करते हैं तो वो वायर पूरा एक मैग्नेट वर्क करता है
और वो मैग्नेट की वजह से जो नीडल होगी वो नीडल अपनी ओरिजिनल पोजीशन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से डिफ्लेक्ट मतलब ऐसी होगी तो थोड़ी लेफ्ट या थोड़ी राइट ऐसे ही डिफ्लेक्ट करेगी. We see that the needle is deflected. What does it mean? It means that the electric current throughout the copper wire has produced a magnetic effect. Yes, वो जो कॉपर का हमने एक्स वाई एंड के पे जो वायर लगाया था उसने कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस की है. Thus, we can say that electricity and magnetism are linked to each other. Yes, both are related to each other. Then, what about the reverse possibility of an electric effect of moving magnets? In this chapter, we will study magnetic fields and such electromagnetic effects. We shall also study about electromagnets and electric motors, which involve the magnetic effect of electric current, and electric generators, which involve the electric effect of moving magnets. ठीक है. In the beginning of this chapter, I told you that there will be two effects we will study. First is electricity. Due to electricity, the effect is that they will generate magnetism, and second is by moving magnets we are doing generating electricity. So on first principle electric motor is working, and on the second principle electric generator will be working. So in the further portion we will study about electric motors and electric generators also. Okay, so yes, Hans Christian Ørsted, okay, he is a scientist. Okay, so let's begin the chapter 13.1 magnetic field and field lines. Okay, we are familiar with the fact that compass needle gets deflected when brought near a bar magnet. A compass needle is in fact a small bar magnet. ठीक है, बार मैग्नेट आप लोगों ने डायग्राम में देखा होगा कि ऐसा एक मैग्नेट होता है. वो मैग्नेट क्या करता है, कोई भी उसके दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होते हैं और एक साउथ पोल होते हैं. ठीक है, और वो मैग्नेटिक नीडल आप उसके नज़दीक ले जाएंगे तो वो उसको डिफ्लेक्ट कर देगा. ठीक है, ये बार मैग्नेट मतलब ऐसे एक मैग्नेट होता है. ठीक है, the end of the compass needle point approximately towards north and south direction. ठीक है, yes, जो भी हम लोग कंपास लेंगे उसकी नीडल के पॉइंट नॉर्थ ऊपर और साउथ नीचे की डायरेक्शन में स्टेडी रहेंगे, क्योंकि ऊपर नॉर्थ पोल और नीचे साउथ पोल है. द एंड पॉइंटिंग टूवर्ड्स नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग और नॉर्थ पोल. द एंड दैट पॉइंट्स टूवर्ड्स साउथ इज कॉल्ड साउथ सीकिंग और साउथ पोल. So throughout various activities we have observed that like poles repel while unlike poles of magnet attract each other. ठीक है, yes, ये आप सब लोगों को पता है कि नॉर्थ नॉर्थ ये जो दो पोल्स होंगे they both will attract with each other. They will both will north pole will repel each other and north south pole और south north pole will attract each other. Same south pole will repel each other. मतलब equal poles will repel and different poles will attract each other. Okay, so first question, why does compass needle gets deflected when brought near a bar magnet? Okay, so compass needle is actually वन टाइप ऑफ स्मॉल बार मैग्नेट. ठीक है, वो खुद ही एक टाइप का बार मैग्नेट है जिसका एक पोल नॉर्थ पे और दूसरा पोल साउथ में होता है. When this compass needle brought nearer to the bar magnet, compass needle will be deflected due to the forces of acting on its pole due to magnetic field of the bar magnet. जो बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड्स होती है उसकी वजह से वो कंपास नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट हो गई है. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या होता है, ये जो हमारा एक बार मैग्नेट है, ठीक है, वो बार मैग्नेट की ऐसे एक मैग्नेटिक लाइंस होती है जो ऐसे 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 पूरी जाती है. ठीक है, हाँ, तो इसी मैग्नेटिक लाइन में अगर कोई ऑब्जेक्ट हम लोग प्लेस करेंगे तो उसकी वजह से उसमें जो मैग्नेटिक इफेक्ट रहेगी उसको हम लोग, ये पूरे एरिया को हम लोग क्या कहेंगे, इसको मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे. ठीक है, आगे इस चैप्टर में हम वो भी अभी स्टडी करने वाले हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है और मैग्नेटिक लाइंस क्या है. ठीक है, So activity 13.2, fix a sheet of white paper on a drawing board using some adhesive material.
Place a bar magnet in the center of it. Sprinkle some iron fillings uniformly around the bar magnet. Salt sprinkler may be used for this purpose. Now tap the board gently. What do you observe? ठीक है, yes. आप लोगों ने एक वाइट पेपर ले लिया, उस पर आप लोगों ने एक बार मैग्नेट रखा और उस पर थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे आप लोगों ने आयन के छोटे छोटे पाउडर फॉर्म में स्प्रेड कर दिया। फिर धीरे धीरे आप लोग टैप करेंगे उस टेबल को, तो सारी की सारी जो आयंस की पिन होगी ना, वो मैग्नेटिक लाइंस जो मैंने अभी डायग्राम में ड्रॉ किया था वैसे वो आपको शो होगी। देखिए एकदम इस तरह से ये एक पेपर लिया, उस पे बार मैग्नेट रखा और पहले अनइवन कैसे भी आप लोगों ने वो आयरन का पाउडर वहाँ पे स्प्रेड कर दिया। आयरन इज अ वन काइंड ऑफ मैग्नेट, मतलब इट विल अट्रैक्ट विथ द मैग्नेट. So whenever we tap that table smoothly, it will do this kind of thing and we will see this kind of thing around our bar magnet. So iron fillings are themselves in a pattern as shown in figure 13.2. Why do the iron fillings arrange in such a pattern? क्यों वो इसी पैटर्न में अरेंज हुई? What does this pattern demonstrate? ये पैटर्न हमें क्या डेमोन्स्ट्रेट प्रूव करती है? द मैग्नेट एक्सर्ट इट्स इन्फ्लुएंस इन द रीजन सराउंडिंग इट, देयरफॉर द आयन फीलिंग्स एक्सपीरियंस अ फोर्स. एवरी मैग्नेट हैज़ इट्स रीजन, इन दैट रीजन इट विल एक्ट एज अ मैग्नेट. सो आयन की जो बार है, लोग जो हमारे मैग्नेट का बार हमने लोगों ने रखा, वो जिस भी एरिया में एक्ट करेगा उस एरिया में हमारी जो सारी आयन की फीलिंग्स है वो वहाँ पे प्लेस हो जाएगी. द फोर्स दस एक्सर्टेड मेक्स आयन फीलिंग टू अरेंज इन अ पैटर्न. द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ द मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड इज सेड टू हैव अ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, वो जो रीजन है दैट रीजन इज कॉल्ड इट्स मैग्नेटिक फील्ड. द लाइन्स along which the iron fillings align themselves represent magnetic field lines. ठीक है, yes, these two terms I already told you. ये एक मैग्नेट है, ठीक है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी होती है, ऐसे 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 यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से जाएगी, सेम नीचे नीचे भी सेम ऐसी होती है. ठीक है, और ये जो पूरा एरिया है, यस, इस पूरे एरिया को हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे और ये लाइंस को मैग्नेटिक लाइंस कहेंगे. ठीक है. Are there other ways of obtaining magnetic field lines around a bar magnet? Yes, there are other ways also. So yes, you can yourself draw the field lines of a bar magnet. हम लोग खुद भी वो लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, चलो. सो अगेन एक एक्टिविटी है. टेक स्मॉल कंपास एंड अ बार मैग्नेट. प्लेस द मैग्नेट ऑन अ शीट ऑफ वाइट पेपर फिक्स्ड ऑन अ ड्राइंग बोर्ड. सेम वे हमें एक बोर्ड लेना है, वाइट बोर्ड, वहाँ पे एक बार मैग्नेट रखना है. मेक द बाउंड्री ऑफ द मैग्नेट. मैग्नेट की बाउंड्री हमें उसके अराउंड ड्रॉ कर देनी है. प्लेस द कंपास नियर द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट. हाउ डज इट बिहेव? द साउथ पोल ऑफ द नीडल पॉइंट्स टूवर्ड्स द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट. द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट. ठीक है, यस, ये लाइन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ. यस, इस डायग्राम की वजह से पहले पूरा एक्सपेरिमेंट पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. मार्क द पोजीशन ऑफ टू एंड्स ऑफ द नीडल. नाउ मूव द नीडल टू अ न्यू पोजीशन सच दैट इट्स नॉर्थ पोल ऑक्यूपाइज द पोजीशन प्रीवियसली ऑक्यूपाइड इट्स नॉर्थ पोल. इन दिस वे proceed step by step till you reach the south pole of the magnet as shown in figure 13.3. Join the points marked on the paper by a smooth curve. This curve represents a field line. Repeat the above procedure and draw as many lines you can. You will get a pattern shown in figure 13.4. These lines represent the magnetic field around the magnet. These are known as magnetic field lines. Observe the deflection in the compass needle as you move it along a field line. The deflection increases as the needle is moved towards the poles. चलो ठीक है, देखिए. तो इस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली क्या किया है, यहाँ पे जो नॉर्थ पोल है, ठीक है, यस, नॉर्थ पोल के नज़दीक हमने जो कंपास लिया उसका साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल ऐसे आ गए.
तो साउथ पोल नॉर्थ पोल के में अट्रैक्ट होगा, तो पहले वो स्ट्रेट था, अभी थोड़ा डिस्प्लेक्ट होके ऐसे नॉर्थ पोल के साइड वो अट्रैक्ट होगा। ठीक है, फिर जैसे जैसे हम जैसे जैसे हम इसको ऐसे ऊपर ले जा रहे हैं, वैसे वैसे उसकी नीडल है ना, पहले ऐसी थी, फिर ऐसी हुई, फिर ऐसी हुई, फिर ऐसी हुई, फिर ऐसी हुई, फिर ऐसी हुई। ठीक है, तो ये पूरा हम इस नीडल के पाथ को अगर ड्रॉ करेंगे ना, तो ये पूरी हमें क्या देगी, एक पूरे के पूरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो करेगी। ठीक है, पहले ऐसी थी, फिर ऐसी हुई, फिर ऐसी हुई, ऐसी हुई, ऐसी हुई, ऐसी हुई, ऐसे पूरी उसकी नीडल की लाइन डिफ्लेक्ट होती है। और वो डिफ्लेक्शन की जो डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन को हम लोग 1 बाय 1 ज्वाइन करेंगे तो हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिल जाती है। ठीक है, सो वो ऊपर का एक्सपेरिमेंट था आयन फीलिंग्स, उससे भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, और ये नीचे का जो एक्सपेरिमेंट है उससे भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलो वो हाँ यस, हम लोगों ने देखा ऐसे वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम लोग जब उन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो ऐसे हम लोग उसको ड्रॉ कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इज अ क्वांटिटी दैट हैज़ बीन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, उसकी एक डायरेक्शन है उस और उसका एक मैग्नीट्यूड मतलब एक वैल्यू है कि जो उसको अट्रैक्ट करेगा। मतलब बार मैग्नेट के नज़दीक की जो लाइंस है ना, उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, और जैसे जैसे हम फार डिस्टेंस पे जाएंगे वहाँ से, वैसे वैसे द मैग्नीट्यूड विल बी डिक्रीजिंग। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन टू बी द डायरेक्शन इन विच नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल मूव्स इनसाइड इट। हाँ, नॉर्थ पोल देखो ऊपर से नॉर्थ पोल है, ठीक है, तो नॉर्थ पोल ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, तो नॉर्थ पोल जिस भी डायरेक्शन में मूव करता है ना, उसकी डायरेक्शन में हम लोग वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे। Therefore, it is taken by convention that the field lines emerge from North Pole and merge at the South Pole. ठीक है, चलो सो इस सेंटेंस में क्या बोला है, यस फील्ड लाइंस की क्वालिटी हमें बताई गई है। ठीक है, फील्ड लाइंस होती है वो इमर्ज, इमर्ज मतलब स्टार्ट। सो ये नॉर्थ पोल है, तो यहाँ से वो लाइन स्टार्ट होगी और वो कहाँ से जाएगी, ऐसे अंदर जाएगी। ठीक है, और साउथ पोल पे एंड करेगी। और बार मैग्नेट के अंदर, बार मैग्नेट के अंदर अंदर वो जो लाइन है, वो लाइन साउथ मैग्नेट से स्टार्ट होकर नॉर्थ मतलब साउथ पोल से स्टार्ट होकर नॉर्थ पोल में जाएगी। तो ये बात याद रखना कि मैग्नेट के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, मतलब उसके अंदर भी ये लाइन है, ये पूरा एक सर्कल है, यहाँ पे हमारा बार मैग्नेट आ गया। ठीक है, तो ये जो लाइन है वो मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ जाती है, बट मैग्नेट के अंदर इनसाइड मैग्नेट इट विल ट्रैवल फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। देखिए ये साउथ टू नॉर्थ जाती है, मतलब इसको हम लोग आगे एक्सटेंड करेंगे तो वो साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करती है। ठीक है, ये क्वालिटीज़ है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। So therefore it is taken by convention that the field lines emerge from North Pole and merge at the South Pole. Inside the magnet the direction of field line is from its South Pole to its North Pole. ठीक है, अंदर मैग्नेट के अंदर वो साउथ से नॉर्थ जाएगी। Thus the magnetic field lines are closed curve, और वो एक क्लोज कर्व मतलब बहुत नज़दीक नज़दीक है और एक क्लोज कर्व बनाती है। The relative strength of the magnetic field is shown by the degree of closeness of the field lines. अगर फील्ड लाइंस हमारी ज़्यादा क्लोज होगी तो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और वो दूर दूर होगी तो उसकी स्ट्रेंथ कम है। द फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, दैट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द पोल ऑफ अनदर मैग्नेट प्लेस्ड इज ग्रेटर व्हेन द फील्ड लाइंस आर क्राउडेड। मतलब जैसे वो नज़दीक होगी तो उसका फोर्स ज़्यादा होगा, और वो दूर दूर होगी तो उसका फोर्स कम होगा। No two field lines are found to cross each other. If they did, it would mean that at the point of intersection, the compass needle would point towards two directions, which is not possible. ठीक है, चलो इस सेंटेंस को भी हम लोग समझते हैं। तो फील्ड लाइंस मैंने बोला ये एक बार मैग्नेट है, हाँ एक लाइन ऐसी गई पूरी ऐसी, दूसरी लाइन ऐसी आई। ठीक है, हाँ मतलब कि कभी भी अगर मैं तीसरी यहाँ से लूँ ऐसी, तो वो कभी भी इसको क्रॉस नहीं करेगी, वो उसके नीचे या ऊपर ऐसे हो जाएगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी।
अगर इंटरसेक्ट कर लिया, एक लाइन यहाँ गई और दूसरी लाइन ने यहाँ गई, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो गई। तो हम जब भी फिर कंपास लेंगे तो ये कंफ्यूज हो जाएगी कि इसको इस साइड डिफ्लेक्ट होना है कि इस साइड डिफ्लेक्ट होना है। तो ये चीज़ कभी भी मैग्नेट में पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स they will not intersect with each other. They are passing, they are making close curves, okay, but they will never intersect. If they will intersect, then there will be two different direction of this magnetic field lines, which is not possible. So this question can be asked, why magnetic field lines are not intersecting each other? What if they intersect each other? Okay, so no, they will not intersect with each other. If they intersect with each other, then they will form two different directions of magnetism, which is not possible. Okay, so that's why they will not intersect with each other. ठीक है, सो क्वेश्चन आप लोगों को एक पूछ सकते हैं कि स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ होती है फर्स्ट। सेकेंड, इनसाइड मैग्नेट दे आर पासिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ सेकेंड। थर्ड, they will be making close curves, and fourth, they will not intersect with each other. ठीक है, these four are characteristics of magnetic field lines. Okay, so I hope till this point it is all clear to you. Okay, so I end up this first part with this topic. In second part of this video, I will be beginning from 13.2 topic, magnetic field due to current carrying conductor. Okay, so if you like this video, then please do like, please subscribe to my channel, and also share with your friends so that they can also understand this topic. And you have any doubt, please write it in the comment box, or you can directly ask me, okay, in the lecture. So thank you for this lecture. Please read and concentrate on this topic very carefully. Okay, please read it once in your textbook after I complete this video. Thank you.